بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا پرانا نام رام دیس مکھ کرشنا ہے۔ میں دہلی نجف کے علاقے کے ہندو جاٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے بابا جی ہمارے گاؤں کے پردھان اور ذمہ داروں میں سے ہیں۔ ہمارا گاؤں کچھ زمانہ پہلے روہتک ضلع ہریانہ میں تھا۔ میں آج کل دہلی میں کام کرتا ہوں۔ یوں تو میں اس سنسار یعنی دنیا میں 27 ستمبر 1859 کو آ گیا تھا، مگر دوسرا جنم ٹھیک 45 سال بعد 27 ستمبر 2004 کو ہوا ہے۔ میں اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ عجیب بات یہ ہے کہ پہلے جنم کے ٹھیک 45 سال بعد میں نے نیا جنم لیا اور دوبارہ جنم کے عقیدے سے توبہ کی۔ میں نے 27 ستمبر 2004 پیر کے دن 7:30 بجے دن چھپنے کے بعد مولوی صدیقی صاحب کے ہاتھ پر پھلک ضلع مظفر نگر یوپی میں ان کے گھر کے اوپر والے کمرے میں کلمہ پڑھ کر اپنی نئی اسلامی زندگی شروع کی۔ میں نے 1976 میں ہائی اسکول پاس کیا اور آگے سے منع کر دیا۔ 2 سال تک چھٹی کرتا رہا۔ میرے تاؤ اور ایک موسا پھوپھا فوج میں بڑے کرنل ہیں، وہ گھر آئے۔ انہوں نے مجھے دھمکایا کہ اگر تو پڑھنے نہیں جاتا تو تجھے فوج میں بھرتی کر دیں گے اور تجھے لام پر جانا پڑے گا۔ میں نے داخلہ لے لیا اور انٹر کر لیا، مگر پھر پڑھنے کو دل نہ چاہا۔ میری ماں نے بابا سے کہہ کر میری شادی کروا دی اور ماں کی خوشی کے لیے میں نے پرائیویٹ BA بھی کر لیا۔ شادی کے 2 سال بعد میرے پھوپھا نے ایک ضروری کام کے دھوکے سے بریلی بلایا اور مجھے بیرک میں لے جا کر میرے بال کٹوائے۔ وہ فوج میں کرنل تھے۔ سارے کاغذات اور میڈیکل کرا کے مجھے بھرتی کر لیا اور مجھ سے کہا کہ تیری بھرتی ہو گئی ہے، اب اگر تو بھاگے گا تو فوجی تجھے پکڑ کر لائیں گے اور بھگوڑا قرار دے کر گولی مار دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے۔ مجھے ڈر سے ٹریننگ میں جانا پڑا۔ میرا دل نہیں لگتا تھا اور گھر یاد آتا تھا، اور گھر سے زیادہ گھر والی بیچاری بڑی محبت کرنے والی شریف عورت ہے۔ میں نے ٹریننگ میں ساتھیوں سے کہا کہ اس فوج سے جان چھوٹنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ اگر افسر انفٹ کر دے تو کام آسان ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت آسان ہے۔ میں نے پاگل پن کا بہانہ کیا، بیکی باتیں کرتا، کبھی ہنستا اور کبھی ہنستا ہی رہتا، کبھی چیختا تو چیختا ہی رہتا۔ مجھے ہسپتال میں بھرتی کیا گیا اور میڈیکل چیک اپ ہوا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بہانہ ہے۔ مجھے افسر نے بہت گالیاں دی اور سخت سزا کی دھمکی دی۔ لاچاری میں پھر ٹریننگ شروع ہو گئی۔ روز پریڈ میں صبح کے وقت جیسے ہی افسر آئے، میں نے رائفل کھڑی کی اور تمباکو کی پڑیا ہتھیلی پر ڈال کر اس میں چونا ملانا شروع کیا۔ جیسے ہی افسر سامنے آیا، میں نے دوسرے ہاتھ سے سلوٹ مارا اور جے ہند بولا۔ میرے ہاتھ میں تمباکو کو دیکھ کر اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ آگے کر کے کہا سر یہ تمباکو ہے، لو آپ بھی کھا لو۔ وہ دھمکا کر بولے نالائق، تیرا بیلٹ نمبر کیا ہے؟ میں نے نمبر بتا دیا۔ دوپہر کے بعد انہوں نے مجھے دفتر میں بلا لیا اور مجھ سے کہا جب میں دشمن کے سامنے ہوں تو تمباکو کھائے گا یا گولی چلائے گا؟ میں نے عرض کیا صاحب تمباکو کو کھا کر گولی چلانے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ بہت غصہ ہوئے میری فائل نکالی اور اس پر لال قلم سے انفٹ لکھ دیا۔ میں نے جے ہند کہہ کر خوشی سے سلام کیا اور رات کو ہی گاڑی میں بیٹھ کر دہلی آ گیا۔ میرے پھوپھا کو معلوم ہوا تو انہوں نے گھر فون کر دیا کہ بھگوڑا غدار فوج سے جان بچا کر بھاگ آیا ہے۔ میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی کہ تو غدار بھگوڑا ہے۔ میں نے سمجھایا کہ بھاگیوان یعنی خوش قسمت، اگر وہ جنگ میں بیچ دیتے تو ودوا یعنی بیوہ ہو جاتی۔ اب موج سے ساتھ رہیں گے۔ بڑی مشکل سے اس کی سمجھ میں آیا اور وہ راضی ہو گئی۔ میں نے ماں کو بھی بہت سمجھایا۔ کچھ روز یار دوستوں میں آوارہ پھر کر اپنے بابا کے ڈر سے پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار شروع کر دیا۔ میری دوستی کچھ غلط لوگوں سے ہو گئی۔ جھگڑے کی زمین خریدی، مار پیٹ کر دھمکا کر قبضہ کیا اور بیچ دی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو ستایا، کتنوں کا مال مارا۔ مار دھاڑ کے 19 مقدمے میرے ذمہ لگ گئے۔ میں جیل چلا گیا۔ کسی طرح ضمانت ہوئی۔ میں پہلے جیل سے بہت ڈرتا تھا، 2.5 مہینے کی جیل سے اور بھی دہشت بڑھ گئی۔ 2 باتیں مجھ میں پہلے سے ہی مسلمانوں جیسی تھی۔ جب ہوش سنبھالا کسی مورتی کسی دیوی کی پوجا نہیں کی، اور دوسری یہ کہ نجف گڑھ سے آگے ایک جگہ سور کے گوشت کی دکانیں تھی، مگر جوانی کے دنوں میں مرغا وغیرہ کھانے کے باوجود اول تو اس راستے سے گزرنا مشکل تھا۔ اگر جلدی میں گزر جاتا تو سانس روک کر
नीची निगाह करके गुजरता। सूअर के गोश्त को देख कर ही मुझे उल्टी सी आती थी। जेल से जमानत पर वापस आया तो मेरी माँ ने, जो बहुत धर्मक यानी मजहबी हैं, हर शुक्रवार यानी जुमा को रोज़ा रखती थी, मुझसे कहा कि तू नासक है यानी मुल्हिद है, देवताओं को मानता नहीं बल्कि इनका अनादर बेअदबी करता है, इसलिए तेरे ऊपर इतनी आफत है। मुझे एक हनुमान की मूर्ति और हनुमान 40 दिया कि इसका जाप यानी विरद करो। मैं अंदर कमरे में माँ की जिद और कुछ डर की वजह से रोज़ हनुमान 40 का जाप करता। मुकदमे की आखिरी तारीख आई। एक औरत की गवाही थी। मैंने सुबह तड़के उठकर हनुमान 40 का जाप किया और प्रार्थना की यानी दुआ की। हालांकि दिल में विश्वास यही था कि ये बेजान मूर्ति है, इसमें क्या रखा है। यकीन के साथ या शायद लालच में देर तक मैंने जाप किया और प्रार्थना की कि गवाही टूट जाए। अदालत गया तो इस औरत ने डट कर गवाही दी कि जज समझ गया कि बात सच है। मुझे गुस्सा आ गया, यह ख्याल भी ना रहा कि अदालत है। मैंने गुस्से में इस औरत से कहा कि तुझे बाहर नहीं निकलना है क्या। जज ने सुन लिया और बरहम हुआ और जमानत कैंसिल करके जेल भेजने का हुक्म कर दिया। 2 महीने फिर जेल में रहा। बाबा जी ने कोर्ट से जमानत कराई। जेल से घर आया तो पहले कमरा बंद करके हनुमान की मूर्ति पर जूता गीला करके बजाया, हनुमान 40 को जलाया और खूब गालियां दी। माँ ने जूते की आवाज़ सुनी तो बाहर से बहुत चीखी। वो समझ रही थी कि मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, मगर जब इनको मालूम हुआ कि वो बाहर है तो इनकी जान में जान आई। मैं बयान नहीं कर सकता कि रोज़ रोज़ मुकदमों की तारीखों से मैं कितना परेशान था। हमारे इलाके में एक मुल्ला जी फलों की ठेली लगाते थे। मैंने उनसे बात की कि कोई तावीज़ वगैरह बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। इन्होंने कहा कि किसी तावीज़ वाले को ना तो मैं जानता हूँ ना मुझे इस पर एतमाद है। हाँ, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, रोज़ाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो। मैंने कहा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं परेशान था ही, इसलिए मैंने सुबह शाम 500 बार पढ़ा। असल में मालिक को मुझ पर दया यानी रहम आ रही थी। पहली तारीख में मैं बरी हो गया। 1 साल में 11 मुकदमे हक में फैसला हुए। मैं मुल्ला जी के पास आने जाने लगा और इनसे कहा कि बहुत कुछ बताओ ताकि सारे मुकदमों से मेरी जान बचे। इन्होंने खुद कुछ बताने की बजाय मुझे हिंदी में एक किताब मरने के बाद क्या होगा वो दी। मैंने इसको गौर से पढ़ा। दोज़ख की सजाओं को पढ़कर मेरे दिल में डर बैठ गया। रात को डरावने ख्वाब भी दिखाई देते। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैंने कितने लोगों की ज़मीनें दबाई हैं, कितने लोगों को मारा, अब मेरा क्या होगा। मुझे इस किताब ने बेचैन कर दिया। मुकदमों से ज़्यादा रात दिन मौत और दोज़ख का खौफ सवार रहता। मैं सोचता कि इस दुनिया की अदालत के 19 मुकदमों से ज़िंदगी ख़राब है तो उस मालिक के सामने अनगिनत मुकदमों से कैसे छुटकारा मिलेगा। मैंने मुल्ला जी से मशवरा किया। इन्होंने कहा कि मुसलमान हो जाओ। मैंने इस्लाम के बारे में किसी किताब के लिए कहा तो इन्होंने इस्लाम क्या है ला कर दी। मेरी समझ में इस्लाम आ गया। अब मेरी समझ में आया कि मेरा फ़ौज में दिल क्यों नहीं लगा। अगर मैं फ़ौज में रहता तो ये जुल्म मारपीट ना करता और मरने का ख्याल भी ना आता। मेरे मालिक ने मुझे हिदायत के लिए फ़ौज से भगा दिया और उलट पुलट काम करवाए। इस्लाम कबूल करने के लिए मैं इमाम बुखारी के पास जामिया मस्जिद दिल्ली गया। पहले तो इन तक पहुंचना ही मुश्किल है। मैं किसी तरह तरकीब से कई दिनों की तगो-दो के बाद इनके पास पहुंच गया। इमाम साहब ने कहा कि अपने यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को लेकर आना जो तुम्हें जानते हो। मैं 2-4 रोज़ की कोशिश से 2 मुसलमानों को लेकर गया तो वो कहने लगे शनाख्ती कार्ड लाओ। मैंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, बार बार क्यों परेशान करते हैं। वो नाराज़ हो गए और बोले बात करने की तमीज़ नहीं। मैंने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं, मुझे तो है, और मैं चला आया। इसके बाद एक साहब ने दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद जाने को कहा। मैं वहाँ पहुँचा तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमान होने के बाद तुम्हारा निकाह ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें अपनी बीवी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कि वो 25 साल से मेरे साथ रह रही है, ऐसी भली औरत है कि आज तक मुझे इससे शिकायत नहीं हुई, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता और ना तुम मुसलमान हो सकते हो। वहाँ से मायूस होकर मैंने तलाश जारी रखी। एक साहब ने मुझे एक मिज़ार पर भेज दिया। वहाँ एक मियाँ जी, लंबे बाल, ढेर सारी मालाएं गले में डाले, हरे रंग का लंबा कुर्ता
اور بہت اونچی ٹوپی پہنے ہوئے ملے۔ میں ایک جاننے والے کو وہاں لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھواتا ہوں، میرے قریب بیٹھو۔ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر ادب سے بٹھایا، اپنے دانے ہاتھ میں میرا بایاں انگوٹھا اور بائیں ہاتھ میں دایاں انگوٹھا لے لیا اور بولے مرید ہونے کی نیت کرو اور میرے پیروں پر ادب سے نگاہ رکھو۔ مجھے بچپن کے کھیل کا دھیان آ گیا، ہم بچے ایک دوسرے کو اسی طرح کرتے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، وہ گھبرا کے ہنس رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بچپن کا ایک کھیل یاد آ گیا ہے، اگر بچوں کی طرح آپ کو بھی سر کے اوپر گھما کر پھینک دوں۔ تو انہوں نے پھر دھمکایا، نہ جانے کیا کیا کہلوایا، قادریہ، غوثیہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر بولے میرے پاؤں کے بیچ سر رکھو۔ میں نے منع کیا تو دھمکا کر بولے کہ مرید ہو کر بات نہیں مانتا۔ میں نے سر ٹیکا اور جلدی سے اٹھا لیا۔ وہ دوبارہ بولے ادب سے قدموں میں سر رکھو اور یہ سوچو کہ مجھ میں خدا کا نور ہے، جس طرح خدا کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کرو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکا تھا۔ میں نے اس نالائق سے کہا کہ اگر میں تجھے اٹھا کر دے ماروں تو خدا تو میں ہوں گا، اس لیے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ میں نے 2-4 گالیاں دی اور چلا آیا۔ مجھے مسلمان ہونے کی بے چینی تھی اور موت کا کھٹکا تھا۔ میں نے ایک ملا جی سے ذکر کیا، وہ مجھے قاضی جی کے ہاں لے گئے۔ قاضی جی نے کہا کہ مسلمان تو ہم تمہیں کر لیں گے، مگر 2000 روپے فیس ہوگی۔ میں نے کہا مجھے مسلمانوں کا اسلام نہیں چاہیے، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے پیسے لیے ہوں تو آپ بھی لے لیں۔ جب انہوں نے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا تو آپ کیسے پیسے لیتے ہیں؟ 2000 کی بات بڑی نہیں تھی، مگر مجھے وشواس نہیں ہوا۔ میں وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ اگلے روز ایک مسجد کے سامنے سے جا رہا تھا تو ذرا صاف ستھرے کپڑوں میں ایک مولوی صاحب مسجد کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ بعد میں ان سے تعارف ہوا۔ ان کا نام مولوی عبدالسمیع قاسمی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ پہلے تو وہ ٹھٹکے، بعد میں وہ تیار ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسلام کے بارے میں نے 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کو گئے تو ان کے ساتھ 1.25 لاکھ ساتھی تھے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا کہ میں نے اسلام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ پہنچا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو یہاں سے غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، یہ اسلام تمہیں ان تک پہنچانا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن مسلمانوں تک اسلام پہنچ چکا ہے وہ دوسرے انسانوں تک اسلام پہنچائیں۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہاں ضرور پہنچانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے ایسے 2-4 لوگوں سے ملوائیں جو دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہوں۔ مولوی صاحب بولے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کام تو سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، مگر مجھے ایک مسلمان بھی نہیں ملا۔ میں خود اسلام لانا چاہتا ہوں۔ 4 بڑے مولویوں نے مجھے دھکے دیے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ میں آپ کو ایک صاحب کا پتہ بتاتا ہوں، آپ ضلع مظفر نگر یوپی چلے جاؤ۔ میں نے ان کا پورا پتہ اور دیگر ساری معلومات لیں۔ ان دنوں میں چند بڑے اور مخصوص لوگوں کے پاس موبائل ہوا کرتے تھے اور اکثر گھروں میں PTCL کا بھی نظام موجود تھا، اور چھوٹے قصبوں اور چھوٹے شہروں میں PCO کی سہولت موجود ہوتی تھی۔ میں نے ان کا نمبر لینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ فون نمبر معلوم کر کے دیتا ہوں۔ ناگلوئی دہلی کے کسی مولوی صاحب کو انہوں نے فون کیا اور مولوی محمد کلیم صدیق صاحب کا فون نمبر انہوں نے ملایا۔ مولوی صاحب دلی سے پھلک جا رہے تھے۔ مولوی قاسمی نے کہا کہ ہمارے ایک چودھری صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ان کو آج شام تک پھلک بھیج دیں۔ میں نے کہا فون پر مجھ سے بات کروا دو۔ انہوں نے مجھے فون دے دیا، میں نے بات کی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ جب بھی آئیں ہمارے مہمان، بلکہ معزز مہمان ہوں گے، میں خدمت کے لیے ہر سمے حاضر ہوں۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بڑا عجیب لگا، ایک آدمی 100-150 کلومیٹر دور ایسا سواگت کر رہا ہے۔ مجھے تو ایک منٹ گزرتا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اسی روز 27 ستمبر 2004 کے دن سورج چھپنے تک پھلک پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے تھے، میں بیٹھک میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب آئے تو میں نے ملاقات کی۔ مولوی صاحب بہت خوشی سے ملے۔ ان کے یہاں باہر کے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو مکان کے اوپر والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب نے مجھے بھی وہیں بلا لیا۔ مجھ سے پیار سے سوال کیا کہ میرے لیے سیوا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
मौलवी साहब ने कहा कि बहुत मुबारक हो, जो सांस अंदर चला गया इसके बाहर आने का इत्मीनान नहीं, और जो बाहर गया इसके अंदर जाने का भरोसा नहीं। असल में तो ईमान दिल के विश्वास यानी यकीन का नाम है। आपने इरादा कर लिया, दिल से तय कर लिया कि मुझे मुसलमान होना है, तो ये काफ़ी है। मगर इस संसार में हम लोग दिल के हाल को जान नहीं सकते, इसलिए ज़ुबान से भी कलमा पढ़ना पड़ता है। आप जल्दी से 2 लाइन को कलमा कहते हैं, पढ़ लीजिए। मैंने कहा कि मुझे एक बात पहले बताइए कि मुसलमान होकर मुझे बीवी को छोड़ना पड़ेगा। मौलवी साहब ने कहा, साहब आप कैसे मुसलमान होंगे जो आप अपने जीवन साथी शरीके हयात को छोड़ेंगे? आप छोड़ने की बात करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मुसलमान हैं तो आपको अपनी बीवी को भी जन्नत में ले जाने की कोशिश करनी होगी। मुझे खुशी हुई कि चलो ये अच्छे आदमी मिले हैं। मौलवी साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया, हिंदी में मतलब कहलवाया और बताया कि 3 बातों का आपको ख्याल करना है। एक ये कि ईमान उस मालिक के लिए कबूल किया है जो दिलों के भेद जानता है। मौलवी साहब ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर मेरा मालिक जानता है कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, और इस्लाम वो है जो दिलों के भेद जानने वाले को कबूल हो जाए। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में ईमान की ज़रूरत है, और वो आदमी जो एक मालिक को छोड़कर दूसरे के आगे झुके कुत्ते से भी ज़्यादा गया गुजरा है, क्योंकि कुत्ता भी प्यासा अपने मालिक के दर पर पड़ा रहता है। वो आदमी कुत्ते से भी बदतर है जो दर दर झुके। मगर असल ईमान की ज़रूरत मौत के बाद पड़ेगी। जहाँ हमेशा रहना है तो मौत तक इस ईमान को बचा कर ले जाना है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह ईमान हमारी आपकी मलकियत नहीं है, बल्कि हमारे पास हर उस इंसान की अमानत है जिस तक हम इसे पहुंचा सकते हैं। अब अगर मालिक ने हमें रास्ता दिखा दिया है तो हमें सारे ख़ानदान दोस्तों तक इस सच्चाई को पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा करनी है। मैंने कहा, मौलवी साहब आप सच कहते हैं। मैं असल में खौफ और लालच से मुसलमान हो रहा हूँ। मरने के बाद क्या होगा? दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी। किताबों में मैंने जो कुछ पढ़ा फिल्म की तरह मेरे दिलो दिमाग में घूमता रहता है। मुझे ख्याल होता है कि तूने इतने जुल्म किए हैं, मौत के बाद क्या होगा? अब मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि इस्लाम में मालिक ने जिन कामों से रोका है, पूरी जान लगाकर इन कामों से बचने की कोशिश करूँगा। मेरे मालिक के सामने जाने का मेरा मुंह हो जाए। मैंने मौलवी साहब को बताया कि यह भी अच्छा हुआ कि मैंने इस्लाम को पढ़कर मुसलमान होने का फ़ैसला किया। मुसलमानों को देख कर नहीं, आज के मुसलमानों को देख कर कौन मुसलमान हो सकता है? मेरे चारों तरफ बहुत से मुसलमान रहते हैं। हमारा एक किरायादार है जिसका नाम सैयद ग़ुलाम हैदर है, नमाज भी नहीं पढ़ता। मैंने उसे एक बार कहा कि तुम हर महीने मेरे माँ बाप को किराया देते हो, अगर तुम इनसे मुसलमान होने को कहो तो क्या खबर वह मुसलमान हो जाए। अगर वह मुसलमान हो जाए तो पूरा ख़ानदान मुसलमान हो जाएगा। वो बोले, तुम्हारे बाबा इलाके के प्रधान हैं, अगर मैंने उनसे कह दिया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। मैंने कहा, तुम अल्लाह से नहीं डरते, मेरे बाबा से डरते हो, इसलिए काबे का फ़ोटो हटाकर मेरे बाबा का फ़ोटो लगाओ। रोज़ाना इसके नाम का जाप करके मेरे बाबा को डंडोत करो, इनके सामने सर झुकाओ। मेरे बाबा ने किसी दिन देख लिया तो वो तुम्हारा किराया मुआफ़ कर देंगे, तुम्हारे मज़े आ जाएंगे। मैंने इसे कहा कि तुम अपने आप को सैयद बताते हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें भी जाना है। मैं मालिक के सामने ही लठ मारूंगा कि इन्होंने सैयद होकर एक दिन भी हमारे ईमान लाने को नहीं कहा। मैंने मौलवी साहब को अपनी रुदाद सुनाई और 4 बड़े मौलवियों के पास से वापस आने की बात भी सुनाई। मौलवी साहब ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मुझे तसल्ली दी कि मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की की शादी मैंने कर दी है। हमारा समाज असल में पठानों से बहुत मिलता जुलता है, बहुत शर्मो हया है। मर्दों का बाहर रहना और औरतों का घर रहना ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। मैं अपनी माँ के सामने अपनी बीवी से आज तक बात नहीं कर सकता। माँ बेटी होगी तो मैं इसको ही बताऊंगा। वो कभी कहती भी है कि ये तेरी 5 हाथ की बीवी है, तू इससे क्यों नहीं कहता? मैं कहता हूँ, माँ जब तू मर जाएगी ना तब इससे कहूँगा। हमारे यहाँ अभी तक लड़की को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। पूरे ख़ानदान में मैंने बगावत करके लड़की को पढ़ाया, हाई स्कूल पास किया तो इसने मुझसे कहा कि अब्बू जी मुझे 2000 रुपये चाहिए। कहा, बेटी 2000 का क्या करोगी? इसने कहा कि 1000 का मोबाइल मिल रहा है। मैंने उससे कहा कि मोबाइल का क्या करोगी? इसने कहा कि
बात किया करूँगी। मैंने पूछा और 1000 का क्या करोगी? इसने कहा कि जीन्स लाऊंगी। मैंने इसे कहा कि 2000 की जगह 5000 दूंगा। मगर 15 दिन के बाद मैंने लड़के वालों को बुलवाया जहाँ इसका रिश्ता तय कर रखा था और कहा कि 8 दिन में फेरे फिरवा लो तो लड़की तुम्हारी, वरना मैं किसी दूसरी जगह शादी कर दूंगा। वो तैयार हो गए। बाबा से कहकर पंडित बुलवाया। मैंने लड़की को 2500 रुपए दिए और कहा कि आधे तो ये लो और आधे उस दिन दूंगा जिस रोज गोद में बिठाकर रुखसत करने के लिए तुझे गाड़ी में बिठाऊंगा। आज हाई स्कूल करके मोबाइल और जीन्स मांग रही है। अगर इंटर कर लिया तो किसी अरे गहरे का हाथ पकड़कर घर ले आएगी कि अब्बू जी ये तुम्हारा दामाद है। मैंने अहद कर दिया कि लड़की को 5वीं से आगे हरगिज नहीं पढ़ाना है। ये बात मैंने मौलवी साहब से भी कही थी। इन्होंने कहा कि यह सोच ठीक नहीं, अब तुम मुसलमान हो गए हो, तुमको इस्लाम की हर बात मानना होगी। इस्लाम ने तालीम हासिल करने को फ़र्ज़ कहा है और लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना ज़रूरी है, मगर शर्त यह है कि इस्लामी माहौल और तरबियत में तालीम होनी चाहिए। मैंने वादा कर लिया, अब मेरा पक्का इरादा है कि अपने तीनों बच्चों को इस्लामी तालीम की जो सबसे बड़ी डिग्री होगी उस तक पढ़ाऊँगा। आगे मालिक के हाथ में है। अब मैंने बिल्कुल इस्लामी असूलों पर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया है। मैं शराब का बहुत आदी था जब मैं हिंदू था और लोगों को अपने हाथों से बहुत पिलाई, मगर खुद नहीं पी। मगर जब से मैंने कलमा पढ़ा, अब ज़िंदगी भर ना पीनी है और ना पिलानी है और ना पीने वालों के पास बैठना है। अब तो मुझे शराब का ख्याल भी नहीं आता और मालिक का करम है कि किसी दोस्त ने भी मेरे सामने नहीं पी। हालांकि किसी को मालूम भी नहीं कि मैंने शराब छोड़ दी है या इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरी बीवी मेरी माँ की तरह बहुत कट्टर मजहबी है। जब मौलवी साहब मुझसे कह रहे थे कि इसको अपने साथ जन्नत में ले जाना है, तो मैंने बताया कि वो तो बहुत कट्टर हिंदू है। जिस रोज़ गोश्त खा कर आता हूँ, घर में घुसना मुश्किल कर देती है। न जाने इसको कैसे खुशबू आ जाती है। मौलवी साहब ने कहा कि कट्टर हिंदू ही सच्ची मुसलमान होती है। इंसान अपने मालिक को खुश करने के लिए ही धर्म की पाबंदी करता है। अगर आप इसको समझा दें कि ये रास्ता गलत है और सच्चा रास्ता इस्लाम है, तो इस्लाम पर भी वो बहुत सख्ती से अमल करेगी। मैंने फलक में मौलवी साहब के भांजे के मोबाइल से इसको बता दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो वह बहुत नाराज़ हुई। मैंने ये कहकर बात बंद कर दी कि मैं दूसरे के मोबाइल से फ़ोन कर रहा हूँ। अगले रोज़ सुबह मेरे मुकदमे की तारीख थी। मुझे सुबह वकील से भी मिलना था, इसलिए रात को मौलवी साहब ने अपनी गाड़ी से खतौली पहुंचा दिया। रात को 12:45 पर घर पहुंचा। महारानी जी गुस्से में भरी बैठी थी, धक्के देने लगी, बार बार गालियां दी। 25 साल का अदब भूल गई। कहने लगी कि तू धर्म मजहब बर्बाद करके आया है, मेरा क्या लगता है, भाग जा। न जाने क्या क्या कहा। सुबह तक लड़ाई होती रही। मौलवी साहब ने बीवी को दावत देने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर एक पॉइंट बता दिया था। सुबह होने को हुई तो इस डर से कि दिन निकल आया तो ये सबको बता देगी, इसलिए मैंने आखिरी तीर के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि तू असली हिंदू है या नकली? इसने कहा कि असली हूँ, बिल्कुल असली। मैंने कहा अगर असली हिंदू है और मैं इस्लाम की चिता में जल रहा हूँ तो तुझे भी मेरे साथ सत्ती हो जाना चाहिए। तीर निशाने पर लग गया। वो चुप हो गई। काफ़ी देर तक हिचकियों से रोती रही। मैं इसके करीब गया, प्यार किया और दुख सुख और जीवन मरण, जिंदगी और मौत में साथ देने के वादों की दुहाई देकर मुसलमान होने के लिए कहा। वो तैयार हो गई। टूटा फूटा कलमा पढ़वाया और सुबह फजर की नमाज हम दोनों ने साथ पढ़ी। बीवी के मुसलमान होने की अपने मुसलमान होने से ज़्यादा खुशी हुई। मुझे मौलवी साहब की हर बात सच्ची लगने लगी। इन्होंने कहा था कि बीवी को छोड़ने की बात का क्या मतलब, इसको तो जन्नत में साथ ले जाना है। हमारे इलाके में एक मौलवी साहब मस्जिद में इमाम है। मैं रोज़ाना रात को इनके पास जाता हूँ। मुझे जमात में जाना है, मगर मुकदमों की तारीखों की वजह से अभी मजबूर हूँ। मैंने अपनी बड़ी लड़की और दामाद को भी मरने के बाद क्या होगा और आपकी अमानत आपकी सेवा में कुरान पाक पढ़ने के लिए दिया है। मुझे मुसलमानों से सिर्फ ये कहना है कि ये दीन जब अमानत है, जैसा कि मौलवी साहब ने आपकी अमानत आपकी सेवा किताब में लिखा है, तो इसे सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। आज के दौर में इस्लाम पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मैं जाट कौम की साइकोलॉजी अच्छी तरह जानता हूँ। जाट अपने ज़मीर से बहुत डरता है। अगर मरने के बाद क्या होगा
اور دوزخ کا کھٹکا ہندی ترجمہ کر کے جاٹوں میں پہنچایا جائے اور قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کا جو ذکر ہے ان کو سنایا جائے تو جاٹ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔